এটা হচ্ছে লিয়ে হল অফ ফেম আর্মিতে, এখানকার সব রাখা আছে। আমরা সেটাই যাই, গিয়ে দেখি কি কি পাওয়া যায়। দেখি নিয়ে দিয়ে যাবে, এখানটা অনেকটা দিয়ে গিয়ে যাবে, ঘুরে যেতে আমরা, নিয়ে দিয়ে যাবে। দেখুন সব ডকুমেন্টেশন আছে, হল অফ ফেমে, হিট কাউন্টার, প্লেসেস অফ ইন্টারেস্ট। দেখাচ্ছি আগে কামানের ডেমনস্ট্রেশন করা আছে এখানটায় নিয়ে, মুক্তি করা আছে। अच्छा, हम फ्रंट साइड नहीं ले सकते बुद्ध का? अच्छा ओके ओके, अच्छा ओके। এখানে টিকিট কাউন্টারে ক্যাশ অনলি, নো ক্যাশ, কার্ড অনলি এখানে লেখা আছে। আমি সমস্যা পেয়েছি, আমি ক্যাশ দিতে গিয়েছিলাম তো নেওয়া হয়নি, অসীম কেটে নিচ্ছে এখন কার্ড দিয়ে। টিকিটের মূল্য 125 রুপিস, 125 পার হেড। টিকিটটা দেখা, টিকিটটা শো কর, রুপিসটা এই রুপিস 125 ওকে। এখানটা রয়েছি আমরা পেমেন্ট দেখে নিয়ে, এখানটায় এন্ট্রি আছে, এন্ট্রি করে নিচ্ছে। এখানটায় রয়েছে আসেন, নিতে নিতে আমরা নিতে রিনা আছে, অসীম আছে, সঞ্চিত একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আসতে পারিনি, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবার জয়েন করবে, নিয়ে দিয়ে আমরা আসি, দেখাচ্ছি পরে। আমরা এখন মিউজিয়ামে ঢুকেছি, ডেমোগ্রাফি দেওয়া আছে। People of Western culture, Tibetan Buddhist। তবে লাদাখ হচ্ছে টিবেটিয়ান কালচার এখানে পাওয়া যায়, টিবেটিয়ান কালচার টোটালটাই তুলে ধরায়। এটা লাদাখ কালচার, এই লাদাখ কালচারে এই অঞ্চলটা তো পুরোটাই হচ্ছে টিবেটিয়ানদের, এখানকার কালচারটা তুলে ধরে। টিবেটিয়ান বেশিরভাগ বুদ্ধিস্ট এবং টিবেটিয়ানরাই বসবাস নিয়েছে এখানে।
ওয়েস্ট লাদাখ। এই এদের বেশভূষা, পোশাক পরিচ্ছদ এরকম। এটা হচ্ছে যুদ্ধকালীন যে এরা থাকে ওয়ারিয়ার, যুদ্ধে যখন যায় তাদের রূপ থাকে, বস্ত্র থাকে, পরিধান থাকে এরকম। এই আর এটা হচ্ছে ইস্ট লাদাখ। এই ইস্ট লাদাখে বেশভূষা, পোশাক পরিচ্ছদ এরকম থাকে। রুলস অফ লাদাখ কিছু কিছু তুলে ধরছি আমি, এই পরপর 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 থাকছে। হ্যাঁ বল। এই তো অ্যাপ্রিকট ব্লুম, এই সময়টা এটা পাওয়া যায় পুরো। এটা এই সময় শুধু নট অনলি ব্লুম, এই সময় টোটালি ব্লুম হওয়ার পরে ফলটাও চলে আসে নিয়ে। এই অ্যাপ্রিকট ব্লসম, এই সময়টা আমরা এখন আগস্ট মাসে, আজকে 5 তারিখ, এই সময় এই জিনিসটা পাওয়া যাবে এখানটায়। পুরো এপ্রিল মাসে এখানটায় শুধু এই ব্লসমটা পাওয়া যায়, এই যখন ফুলটা ফোটে সেটা এপ্রিল মাসে, মার্চ এপ্রিলে। আর এই সময় আগস্ট মাসে এটা ফল হয়ে যায়, ফলও পাওয়া যায়। এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। একমাত্র এই লাদাখে এই জিনিসটা খুব পাওয়া যায়। এটা এই অ্যাপ্রিকট ব্লসম সময় এখানটা যে কালচার প্রোগ্রাম তৈরি হয়, বিভিন্ন রকম ফেস্টিভ্যাল হয় এই সময়, এপ্রিল মে মাস জুড়ে। अकेला को नहीं बोल रहा हूँ, पूरे को। अब सब हिंदुस्तान का है। मेरे को देख के नहीं लग रहा है, आप लोग को देख के। ठीक है, भारत माता के जय आपने अभी पुकारा था ना, ऐसे नहीं पुकारता है। अभी का पुकारता भारत माता के जय। युद्ध चलने से पहले, युद्ध खत्म होने के बाद अपना हथियार प्रॉपर उठा के पुकारता है। आप लोग अपना देश के नाम लेते समय हाथ लोग करके, हाथ जेब में डाल के भारत माता के जय पुकारता है। ऐसे नहीं होता है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि लद्दाख के अंदर आके हाथ उठाओ, इंडिया के कहीं कोने में घुस जाओ, अपना देश के नाम लेते समय हर लोग करके हाथ जेब में डाल के कभी नहीं पुकारता है। ये ध्यान देना आप लोग। ये भारत माता की जय आप लोग से मैं एक बार दोबारा लेना चाहता हूँ। जब तक भारत माता की जय ठीक ढंग से नहीं होगा ना, दिन के 2 बजे तब तक मैं खड़ा रखूंगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग को अपने देश के बारे में मालूम नहीं है। पहले आपने आवाज तो निकाला था, है ना, वो आवाज मैं अकेला निकाल के दिखाऊंगा। इसके अंदर कम से कम 30-40 आदमी है ना। आप लोग के आवाज सुनना चाहिए पाकिस्तान के बॉर्डर तक, है ना। ये छत भी हिल जाना चाहिए नाद में पड़ने के कारण से, तो आवाज है ना। ये भारत माता की जय एक बार दोबारा होगा। अगर जिस हाथ नहीं उठेगा तो फिर उसी को मैं भारत माता की जय पुकारना दूंगा, है ना। फिर आर्मी में क्या करवा तो वो करवाया आप लोग से करूंगा मैं। आर्मी में आवाज करवाया होता है, ठीक है। ये भारत माता की जय एक बार मैं दोबारा देखना चाहता हूं, ठीक है। अभी मैं फिर नहीं बोलना चाहूंगा, आप देख रहा हूं मैं। बाद में मेरे को ये नहीं बोला, मेरे को बिजली काट दिया मैंने, क्योंकि 2 बार 3 बार बता चुका हूँ अपने हाथ उठाना बोल के, है ना। ये भारत माता की जय एक बार दोबारा दिखाना है। कभी भी जोश नहीं होता, ठीक है। अब उठाएगा अपना जोश पैदा हो जाता है ना। जो थोड़ा आया ना आपको हाथ उठाने के बाद मैंने क्या कर रखा था, आपने नमूना देखा। ओके, प्योरिटी का मतलब पाकिस्तान क्या नाम से पुकारता है, आजाद कश्मीर नाम से पुकारता है। क्या नाम से, आजाद कश्मीर नाम से पुकारता है। नेहरू ने लड़ाई से पहले कुछ दमों वहां मौजूद थे। पाकिस्तान से रिवाज आता है, वो इंडिया के अंदर फिरता है। कौन सा रिवाज, शिंगार रिवाज, पाकिस्तान से आके इंडिया के अंदर फिरता है। सबसे पहले तो आप लोग ये सुनो, 19 युद्ध यानी कारगिल वार कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किस कारण से हुआ था। सबसे पहले इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी आपस में बातचीत कर रखा होता है, जिनको हमको करता समझौता, यानी शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता के दौरान दोनों ने क्या बातचीत चला पाकिस्तान के साथ,
दोनों ने बच्चे चला विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम, तब के पास न कि पाकिस्तान रहेगा न कि इंडिया रहेगा। कहने के मकसद दोनों नहीं रहेगा विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम। ये पाकिस्तान के साथ बातचीत हुआ था। एग्रीमेंट होने के बाद विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर आकर डाउन हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया? हमें धोखा दिया था। क्या दिया था? धोखा दिया था इंडिया को। पाकिस्तान को मालूम था इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर डाउन हो चुका सोच के पाकिस्तान एलओसी क्रॉस करके अपनी एरिया के अंदर घुस फिर चुके थे। अपनी एरिया के अंदर कहां घुस फिर चुका था एलओसी क्रॉस करने के बाद? शायद आपने सुना होगा द्रास के अंदर, कोलोलिंग, पेगार हिल, फोरेंसेक्टॉप के अंदर, कारगिल के अंदर, कक्सर, मद्रास, बटालिक के अंदर, यलदौर, जुबारेज, मुंतोदालू, खनवाबा, टोटल पाकिस्तान बटालिक से लेकर कारगिल से लेकर द्रास तक 134 किलोमीटर की एरिया के अंदर आ चुका था। अपनी एरिया के अंदर 134 किलोमीटर एलओसी क्रॉस करके वो लोग ने धोखे से हमारे एरिया को कैप्चर कर रखा था, यानी कब्जा कर रखा हुआ था। बाद में इंडिया को कैसे पता चला कि हमारे एरिया के अंदर पाकिस्तान घुस चुका है? कारगिल के अंदर एक सिविलियन थे लद्दाख के लोकल, चारबा बैल बकरी चलाने वाला, जिनका नाम था ताशी नामजाद था। क्या नाम था? क्या नाम था? ताशी नामजाद था। उसी ने देखा, एक सिविल ने कैसे देखा? वो चारबा होने से कारण से हर साल अप डाउन होते रहते थे। ने लड़े से पहले उसने क्या किया? अपना बैल बकरी लेके वो बटालिक सेक्टर से वो चाल पड़ा। वो कहां पहुंचा? यादव के टॉप के नीचे पहुंचा सिविलियन बैल बकरी के साथ। यादव के टॉप के ऊपर सिविल ने क्या देखा? सिविल ने देखा शुरू में 8 या 9 आदमी देखा, कुछ पत्थरों से बेकर बनाते हुए बड़े लंबे चौड़े लोग पटाले